is sonorous. When object made of metal are hit with hard surface, a ringing sound is produced. Therefore, metals are called sonorous. The difference between sound, if we hit a spoon with steel or a wooden door, you can easily see. Conductor, insulator. The substance which allow electricity to pass through them is known as conductor, and the substance which does not allow electricity to pass through them is known as insulator. You can see from the different diagrams, we can place different instruments, different substance in this position between A and B, and if the bulb glows, it will be conductor, and if bulb doesn't glow, it will be insulator. So iron nail, yes, the bulb will glow. Coal, no. Aluminum wire, yes. And copper wire, yes. Generally, metals are good conductor of electricity, whereas non-metals are poor, except graphite, which is non-metal but is a good conductor of electricity. धातु के जो है भौतिक गुणों की बात करें तो ध्वनिक धातु जो है पीटने पर जो है ध्वनि उत्पन्न करती है। विद्युत की सुचालक और कुचालक, जो अपने अंदर से विद्युत को जाने देती हैं वो सुचालक, जो नहीं जाने देती वो कुचालक। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर जिस भी पदार्थ को आप चेक करना चाहते हैं उसको लगाएंगे। अगर बल्ब जल जाता है तो विद्युत का सुचालक है, और अगर नहीं जलता है तो वो कुचालक है। तो लोहे की कील सुचालक, कोयला कुचालक, एल्यूमिनियम तार सुचालक और तांबा का तार सुचालक। तो धातुएं जो है विद्युत की सुचालक होती हैं, जबकि अधात्विक कुचालक। ग्रेफाइट जो है एक अधातु है, वो सुचालक होती है। तो ग्रेफाइट क्या है, एक अपवाद है, ये ध्यान में रखना है आपको। अगला है हीट कंडक्टिविटी या ऊष्म चालकता। Making pudding in the pan, when the doorbell rang, she left the spoon in the pan and went to open a door. When she came, she immediately touched the spoon and screamed. पिंकी की जो मदर है वो कुछ बना रही थी और वो चम्मच उसी में बर्तन में छोड़कर बाहर दरवाज़ा खोलने जाती हैं। जब वापस आती हैं तो जैसे ही वो चम्मच को हाथ लगाती हैं तो चीखती ली। तो ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज दैट स्पून ऑल्सो गॉट हॉट। बिकॉज धातुओं के एक सिरे को गर्म करने पर ऊष्मा गर्म सिरे से ठंडे की ओर स्थानांतरित होती है, इसलिए धातु जो है ऊष्मा की सुचालक होती है और अधातु ऊष्मा चालन नहीं करती है। सो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर, और यू कैन से इंसुलेटर्स। प्रश्न उत्तर देखते हैं। द कुकिंग पैन इज मेड अप ऑफ आयरन वाइल इट्स हैंडल इज कवर्ड विद वुड। वाई? कि जो कुकिंग पैन होता है वो लोहे का बना होता है, लेकिन उसका हैंडल जो है वुड का। क्यों? Because cooking pan is made up of iron, as it is good conductor of heat and help in cooking of food, while handle is covered with wood because it is bad conductor of heat and help in easily lifting of cooking pan, जब आपको उसको उठाना होता। Why did she scream on touching the metal spatula? She screamed because the metal spatula got heated up being in contact with pan, as it is also a good conductor of heat. What are conductors of heat and electricity? Metal through which heat can transfer from hot region to colder region are known as conductor of heat. राइट एनी 3 यूजेस ऑफ मेटल। 4 लिखे हुए, आप कोई भी 3 लिख सकते हैं। टू मेक कुकिंग वेयर्स, इट मेक इन मेकिंग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, शीट ऑफ एल्यूमिनियम आयरन, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ज्वेलरी। क्वेश्चन नंबर 5, what you have to do, you have to mark true or false based on the properties of given material in table and indicate whether the substance is metal or a non-metal. Iron, it will be having shiny, malleability, ductility, sonorous, conduction, so it will be a metal. Copper, again all the things will be there, so it will be metal. Coal, it will malleability भी नहीं होगी, shiny भी नहीं होगा, ductility भी, sonorous भी नहीं, तो it will be a non-metal. Carbon rod, now only this will be tick, carbon rod is there, because we are talking carbon rod means graphite, but still it will be non-metal. Aluminium all tick and it will be metal. हिंदी में देखेंगे प्रश्न उत्तरों को। तवा लोहे का बना होता है जबकि उसके अंदर लकड़ी का। कुकिंग पैन आयरन से बना होता है और ये गर्मी का, कुकिंग पैन की जगह आप तवा लिख सकते हो। ये गर्मी का अच्छा संवाहक होता है और वह भोजन को पकाने में मदद करता है, जबकि हैंडल लकड़ी से ढका होता है क्योंकि ये गर्मी का बुरा संवाहक है और ये खाना पकाने के पैन को आसानी से या तवे को पकड़ने में मदद करता है। उसकी मदर चिल्लाई क्यों थी? क्योंकि धातु की चम्मच पैन के संपर्क में आने से गर्म हो गई, क्योंकि वह ऊष्मा की सुचालक थी। पदार्थ जिसके माध्यम से ऊष्मा गर्म क्षेत्र से ठंडे क्षेत्र में स्थानांतरित होती है उसको ऊष्मा के संवहक के रूप में जाना जाता है, या ऊष्मा के सुचालक के रूप में जाना जाता है।
प्रश्न हिंदी में 4 प्रश्न है, इंग्लिश में 5, ये ध्यान रखना। नीचे दिए गए सारणी में पदार्थों के नाम लिखें, उनके गुणों के आधार पर सही गलत का निशान लगाएं। लोहा चमकदार होता है, आघातवर्धनीय होता है, तन्यता होता है, धाविक होता है। तो ये हो गया आपका धातु। तांबे के अंदर भी सारी चीज़ें होती हैं, तो ये भी आपका धातु हो गया। कोयले में इनमें से कोई भी चीज़ें नहीं होती हैं, तो ये अधातु हो गया। कार्बन छड़ भी जो है ये सभी में क्रॉस आएगा, सिर्फ विद्युत सुचालक में टिक आएगा, लेकिन आप लिखोगे यहाँ पे अधातु ही, क्योंकि ये ग्रेफाइट की बात थी। और यहाँ पे सभी में टिक आएगा एल्यूमिनियम में, और ये भी आपकी धातु हो जाएगी। तो आपकी वर्कशीट पूरी होती है। देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।